Hello everyone. Today I am again with you because I left one topic last year and not created any video about it. So I am creating it today. This is TFIDF. TFIDF was not included in the syllabus of Artificial Intelligence class 10th session 2020-21. But this year it is included and it will be coming in the examination. So you have to cover this topic as well. Understand it and practice with the given activities in the book, or if you can get it from the internet or any other books from published by any other publishers, then you should practice because it is good to attempt. You can get full marks in these questions, and TF-IDF is a good topic for descriptive questions, so you have to understand it very well. So TF-IDF, term frequency and inverse document frequency, is the part of Unit 6 Natural Language Processing of Class 10th AI syllabus. I have covered the last session of bag of words with the step of document vector table. In case if you forget this procedure, this is the last result which we have which we got after the text normalization step. So if you forget anything, I quickly want to revise it with one worksheet. How we can get document vector table with the bag of words algorithm. So just look at one activity. Wait. This is a book and in bag of words. Okay, this is the activity given in a book about TF-IDF. In this, you are having a set of three documents. Suppose you are getting get an question in examination paper that there are three documents. Document 1, we can use health chatbot for treating stress. Document 2, we can use NLP to create chatbots and we will be making health chatbots now. Document 3, health chatbots cannot replace human counselors now. If these are the three documents and you have to create TF-IDF values for them, or you have to filter the most important words from this in these documents, or the least the words which are having least importance, then you have to follow these steps. First, you have to convert the document into corpus. In the exam book, you are having NL natural language toolkits, NLTK tools, means these links through which you can do all these steps of text normalization uh, automatically by putting the your text in these tools pages, and you will get the result of these steps. But if you will do attempt any question regarding TF-IDF or bag of words, then you have to do it manually. So you have to try it once with these links, but you have to try it also with manual practice, means you have to do it in examination manually. So you should practice it with your understanding. Okay, so if you are having few documents and you have to create TF-IDF for a value for these documents, then first convert these documents into corpus. How you will convert the document into corpus? Simply merge the text of all the three documents or all the 4 5 documents which you are having in the activity as वन ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट, जस्ट लाइक दिस. यहाँ पे आपका ना फुल स्टॉप लगा है और उसके बाद नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आ गया है. तो अच्छा, दिस इज नॉट द वे कि आप ये सोचो कि वन सेंटेंस इज वन डॉक्यूमेंट इज अ कंप्लीट डॉक्यूमेंट, बट जस्ट फॉर एन एक्टिविटी इट इज गिवन एज वन सेंटेंस सो दैट यू कैन डू इट इन ए लिमिटेड टाइम, लिमिटेड मिनट्स ऑफ ड्यूरेशन. तो इसलिए दिया है. अदरवाइज डॉक्यूमेंट मीन्स अ कंप्लीट डॉक्यूमेंट लाइक एनी थीसिस, एनी article, so it can be any document. So how you will do create the corpus? Simply merge the text, just like one block of text it will work like corpus. So this is the corpus, step 1. Then after corpus you have to do the text normalization steps. These are the text normalization steps: sentence segmentation, tokenization, stop word removal, lowercase conversion, stemming or limitization. Then you have to create document vector table
using the following the procedure of bag of words, algorithm of bag of words, and after that we will proceed towards TFIDF, and then you can get the highest value words and least value words. So first you have to follow text normalization steps, then bag of words. So you have the corpus in hand. Now move towards the next step, sentence segmentation. With the toolkit we have did it like this. हमने उस टेक्स्ट को सेंटेंस सेगमेंटेशन के वेब पेज पे वहाँ जो टूल आपका दिया है, लिंक दिया है, उस पर पुट किया और हमें उसके थ्रू सेंटेंसेस एज ए सेगमेंटेड टेक्स्ट मिल गए थे। तो आपको एग्जाम में करने में कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। सिंपली आपको अगेन उस कॉर्पस को, जैसे आपने डॉक्यूमेंट्स को कॉर्पस बनाया था, तो अगेन उस कॉर्पस में सेंटेंसेस को आपको सेपरेट कर देना है एंड यू विल गेट different segments as sentences. So this is the step of sentence segmentation. Three sentences थे ना, how you can understand this is a sentence with the punctuation mark, जो ending है ना sentence की, आप फुल स्टॉप है, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन है, यहाँ फुल स्टॉप है, इसके थ्रू आप रिकग्नाइज करोगे और सेंटेंसेस में ब्रेक कर देते हैं। Then after this sentence segmentation, the next step is result of tokenization. With the toolkit we have got this result automatically, but in with if you are doing it manually, simply you have to write the result as words, symbols, punctuation marks separately. आप स्पेस के साथ सबको लिख दो। We can use health chatbots for treating stress, फिर एक स्पेस दे के फुल स्टॉप, देन स्पेस, अगेन वी स्पेस कैन, मतलब ये पूरा आप सेट ऑफ वर्ड्स, सिंबल्स, नंबर्स, आप इसको स्पेस दे के लिखते चले जाएंगे। दैट विल बी द रिजल्ट ऑफ टोकनाइजेशन। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, पंक्चुएशन मार्क भी सेपरेट वर्ड की तरह यूज हो रहे हैं, सेपरेट टोकन हो गए हैं। After that you have to move towards the next step, stop word removal. In this step of stop word removal you have to remove all the stop words. अब जनरली स्टॉप वर्ड्स में प्रोनाउन यहाँ पे चले जाते हैं, और भी जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो थ्रू टूल किट वी आर हैविंग दिस फुल स्टॉप सिंबल इज स्टिल देयर, पंक्चुएशन मार्क्स आपके अभी भी दिख रहे हैं, बट ऑल दिस विल बी रिमूव्ड। यहाँ भी क्यों दिख रहे हैं? बिकॉज डॉक्यूमेंट्स आर very short, one sentence document है, so we are having one sentence document, then the frequency of these symbols, these words are very less, that's why they are existing here. कुछ भी वर्ड अगर बहुत कम है, it means स्टॉप वर्ड्स क्या होते हैं, बहुत फ्रीक्वेंट होते हैं, डॉक्यूमेंट में बहुत ज़्यादा होते हैं। और अगर ये बहुत कम दिख रहे हैं, 3 हैं, 2 है यहाँ तो, और ये सिंगल है, तो इट मीन्स हम इनको स्टॉप वर्ड नहीं कंसिडर करते और इसको हम यूज़ कर रहे होते हैं। दैट्स वाई विद द टूल किट इट इज़ स्टिल एग्जिस्टिंग हियर, इवन प्रोनाउंस अभी भी हैं, बट जनरली इफ़ यू आर वर्किंग विद दिस टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन डॉक्यूमेंट्स, तो उसमें बहुत सारा टेक्स्ट होता है, तो उसमें ये हट जाते हैं। तो अभी हम नहीं इसको रिमूव कर रहे हैं, बट ये आप सिंबल्स हटा देना। एग्जामिनेशन जब मैनुअली करेंगे कोई भी सिंबल आप नहीं रखोगे, यू हैव टू रिमूव ऑल दी सिंबल्स। तो अब आपने स्टॉपर रिमूवल में क्या क्या रिमूव किया, आप चेक कर सकते हो। You removed these helping verbs like can, had, have, is, am, are, must. ठीक है, these helping verbs, articles and these ये आपकी क्या है, preposition और conjunction, ठीक है, ऑल दीज थिंग्स विल बी रिमूव्ड। उसके बाद आपका ये स्टॉप वर्ड स्टेप में ये रिजल्ट आ जाएगा। इसमें आप एक बार दोनों को चेक करके देख सकते हो कि क्या रिमूव हुआ है। लाइक लास्ट सेंटेंस देखो आप, हेल्थ, हेल्थ इज देयर, चैट बॉट इज हियर, कैन हट गया, नॉट रिमूव्ड, रिप्लेस इज देयर, ह्यूमन इज देयर, काउंसलर इज देयर एंड नाउ रिमूव्ड। तो आप इसको चेक कर सकते हो कि हम क्या रिमूव कर रहे हैं। After that, the next step is lowercase conversion. In lowercase conversion, simply write the result of stopper removal in lowercase. कुछ भी नहीं change है, as it is हम लिखेंगे, but all will be in lowercase. Then result of stemming. Result of stemming में आप इसमें से affixes हटा दोगे। affixes means s है, e भी होता है, es है, ing है, ed है, ठीक है। किसी भी, जैसे हम कहते हैं ना हेल्प्ड, ईडी, ईडी इज द अफिक्सेस, अफिक्स है वो, उसको रिमूव करोगे। ट्रीटिंग, स्टडीइंग, उसमें आपके आईएनजी रिमूव हो रहे हैं।
एस या ई एस, चैट बॉट्स में ये एस यूज़ हो रहा है, या किसी को प्लूरल बनाने के लिए आप एस ई एस यूज़ करते हो ना, तो ऑल दीज एफिक्सेस विल बी रिमूव्ड। तो सिंपली आप याद रखो, आई एन जी रिमूव करना है, एस या ई एस रिमूव करना है, एंड ई डी रिमूव करना है। So what will be the result of this stemming? We health chatbot treat stress. We NLP create chatbot make health chatbot replace human counselor. अब यहाँ रिप्लेस का ई भी रिमूव हो जाता है, बट नो प्रॉब्लम इफ़ यू आर कीपिंग इट एज इट इज़। अगर कहीं कहीं कन्फ्यूज़न होता है क्योंकि आप मैनुअली कर रहे हो, तो आपको एग्जैक्ट आइडिया नहीं होगा कि टूल किट के थ्रू क्या होता है, पर एक्चुअली स्टेमिंग के स्टेप में इसका ई भी रिमूव हो जाता है। ओके, सो दिस इज द रिजल्ट ऑफ स्टेमिंग। सी वी हेल्थ चैटबॉट ट्रीट स्ट्रेस फुल स्टॉप। अभी हम टूल किट के थ्रू कर रहे हैं, पर आप नहीं यूज़ करेंगे एग्जामिनेशन में करते वक्त, ये आपका रिमूव हो जाएगा स्टॉपर रिमूवल में। वी एन एल पी क्रिएट, इसका देखो ई भी रिमूव हो गया। चैटबॉट मेक का नहीं हुआ बिकॉज मेक इज ऑल हैविंग ओनली 4 अल्फ़ाबेट्स, तो बहुत कम अल्फ़ाबेट्स होते हैं, तो उस वक्त जब हम ये एफिक्सेस रिमूव कर रहे होते हैं, तो ये पूरा एल्गोरिदम है, कंसीडर करा जाता है, पर आप इसमें कहीं कंफ्यूज नहीं होंगे। इवन आप क्रिएट को ई लिख दे रहे हो तो बहुत प्रॉब्लम नहीं है इस समय। हेल्थ चैटबॉट रिप्लेस, या अगेन ई रिमूव्ड ह्यूमन काउंसलर। तो ये एग्जामिनेशन में TF-IDF में आप ये सब नहीं करेंगे, मैं सिंपली समझाने के लिए कर रही हूँ। TF-IDF क्वेश्चन में आप सिंपली टेबल्स बनाते हैं, तो वो अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है। देन excuse me, then the next step is of lemmatization. इन द लेमेटाइजेशन आप क्या करते हो, रूट वर्ड आप चेक करोगे, इज द रूट वर्ड इज डिक्शनरी वर्ड और नॉट आफ्टर रिमूविंग द एफिक्सेस। मीन्स अगर आपने चैटबॉट, सेम वही है जैसे आप स्टेमिंग कर रहे हो, बट डिफरेंस इज दैट if you are removing the affixes like s, es, ing, ed, then you have to check the word which you have got after removing the affixes, is the dictionary word available in the dictionary or not। means वो meaningful word होना चाहिए। वी हेल्थ चैटबॉट ट्रीट स्ट्रेस, वी एनएलपी क्रिएट, यहाँ पे ई रिमूव नहीं हुआ क्योंकि अगर ई रिमूव कर देते हो डिक्शनरी वर्ड नहीं रहता, दैट्स वाई इन लेमेटाइजेशन क्रिएट विल बी, सॉरी क्रिएटिंग विल बी क्रिएट विद ई, चैटबॉट मेक हेल्थ चैटबॉट सिंपली, और यहाँ रिप्लेस में देखो ई भी रिमूव नहीं हुआ है और हमारा स्टेमिंग में ई रिमूव हो रहा था। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन stemming and lemmatization। तो when you are doing TF-IDF then you have to follow lemmatization not stem। तो यहाँ confusion ही खत्म कि आप सोचो ई होगा कि नहीं होगा, आपको सिंपली रूट वर्ड्स रखने हैं, मीनिंगफुल रूट वर्ड्स, तो कुछ confusion नहीं होता उसमें। एंड देन द स्टेप ऑफ बैग ऑफ वर्ड्स आफ्टर टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन या लेमेटाइजेशन पे टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन कंप्लीट हुआ। नाउ मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेप, दिस इज बैग ऑफ वर्ड्स। बैग ऑफ वर्ड्स में आपको क्या करना था, all the words, all the tokens which you have got after this step of lemmatization, you have to write it once. Like if b is there, then not you, if there are more than one b, do not write it again and again, you have to write unique words in this table as an header। तो v आपका फर्स्ट कॉलम में आ गया। नेक्स्ट हेल्थ, देन चैटबॉट, देन ट्रीट, देन स्ट्रेस, देन वी अगेन नो, डोंट राइट इट अगेन बिकॉज इट इज ऑलरेडी देयर, यूनिक वर्ड्स लिखने। NLP is not there, so you have to put it here, NLP, then create। create पहले था नहीं था, so you have to keep it here। next is make, नहीं था, so it can be here। health, health was there आपके पहले से टेबल में, सो यू शुड नॉट, यू विल नॉट राइट इट अगेन। तो हेल्थ, हेल्थ को आप एक जगह दे चुके हो टेबल में, तो नहीं लिखेंगे। चैटबॉट वाज इज ऑल्सो देयर, सो शुड यू विल नॉट राइट चैटबॉट अगेन। हेल्थ चैटबॉट इनको नहीं लिखेंगे दोबारा। देन रिप्लेस एंड ह्यूमन काउंसलर। सो ऑल द यूनिक वर्ड्स of normalized text will be here in the table of डॉक्यूमेंट वेक्टर टेबल इन द रिजल्ट ऑफ बैग ऑफ वर्ड्स एज द हेडर रो। अभी हमने पूरी बनाई नहीं, सिर्फ हेडर रो रेडी हुई है। अब क्या करोगे, द 3 डॉक्यूमेंट्स आपने जो स्टार्ट किया था प्रोसीजर, उनके टेक्स्ट को आप चेक करोगे कि हाउ मेनी टाइम्स दीज वर्ड्स आर इन द डॉक्यूमेंट्स। मीन्स अब ये फर्स्ट रो
फर्स्ट डॉक्यूमेंट के लिए, सेकंड रो सेकंड डॉक्यूमेंट के लिए, थर्ड रो थर्ड डॉक्यूमेंट के लिए. So first row will give the frequency of these words in the first document only. Second row will give the frequency of these words in the second document, and third will give the frequency of these words in third document. Frequency means how many times these words are in the document. So in the first V comes one, एक ही है ना. Health एक बार है, so it's one. Chatbot एक बार है, treat one है, stress one, NLP is not there, so 000. ये words first document में नहीं है, that's why you put here 000. Again in the second document, check V, how many times V? 1. NLP, सॉरी, अच्छा हेल्थ को चेक करो, हेल्थ है कि नहीं. हेल्थ है 1. देन चैटबॉट कितनी बार है? 1 2, 2 टाइम्स, सो यू हैव टू राइट इट 2. नाउ ट्रीट नो 0, स्ट्रेस 0, NLP 1. तो आप इसे चेक करोगे सिर्फ सेकेंड डॉक्यूमेंट. विद दिस way you have to get the frequency of words in the second documents. And again third document, तो इस तरह से आप ये frequency of words in all the three documents will be listed, will be arranged in this table. तो ये जो आपकी टेबल है ये रिजल्ट है बैग ऑफ वर्ड्स का. इसे हम डिक्शनरी भी कहते हैं. ठीक है. It is giving you the unique words and the frequency of these words on the in all the documents. Now after this the TF-IDF procedure will start bag of words के बाद. ठीक है. So before starting the step of TF-IDF I want to explain it in short. Wait a minute. Sorry for this delay. I just left the slide from where I want to start. Okay. So after getting the document vector table, अब ये आप मैंने बताया ना आपने यहाँ तक कर लिया बैग ऑफ वर्ड्स का. After getting the document vector table, what you have to check, this document vector table leads us to final step of our algorithm TF-IDF. अब आपके बैग ऑफ वर्ड्स का लास्ट स्टेप TF-IDF यहाँ पे अब हम स्टार्ट करेंगे. आफ्टर गेटिंग द डॉक्यूमेंट वेक्टर टेबल, दैट वाज डॉक्यूमेंट वेक्टर टेबल. ठीक है. Now TF-IDF, what is TF-IDF? TF-IDF is term frequency and inverse document frequency. This is the full form. टर्म फ्रीक्वेंसी मीन्स जितने आपके वर्ड्स पर आपने अभी टेबल पे लिखे थे हेडर में वो टर्म है. तो टर्म फ्रीक्वेंसी उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है ये भी लिस्टिंग हो रही है. इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी, ये आपको डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी आपको समझ में आ जाएगी कि डॉक्यूमेंट में उन वर्ड्स की क्या फ्रीक्वेंसी, लेकिन इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी अभी जब हम आगे करेंगे तो आपको समझ में आएगा इसका नाम इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी क्यों है. So term frequency, inverse document frequency is the full form of TF-IDF, which is the last step of bag of words algorithm. Bag of words algorithm gives us the frequency of words in each document we have in our corpus. तो आपने ये frequency of words create कर ली थी as document vector table, ये अभी हमने किया ना. So this is the frequency of terms in the documents. After this, you have to keep one more point in your mind. Bag of words gives us an idea that if the words is occurring more in a document, its value is more for that document. किसी भी वर्ड में किसी भी डॉक्यूमेंट में अगर कोई वर्ड ज़्यादा बार आ रहा है तो हम उस फ्रीक्वेंसी की लिस्टिंग जब हम करते हैं तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है. जैसे इट 6 टाइम्स है तो हमें ये पता चल रहा है 6 टाइम्स इट आया है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, which is not. I is 5 times in the document, in the corpus. So I is very important. No, it's not. So that is the problem with bag of words. Means आप document vector table से किसी भी word की importance नहीं समझ सकते.
In this corpus these words are not very important. It, I, and this two, the, these are having good frequency, so you think that these are the very important words. No. So the TFIDF come here in scene. So let's look at the example. If I have a document on air pollution, then air and pollution, these two words would be the words which occur many times in it, because the document is about air pollution. एंड दीज वर्ड्स आर वैल्यूबल टू, क्योंकि वो एयर पॉल्यूशन के बारे में बता रहे हैं, तो बार बार यूज होंगे और वो इम्पॉर्टेंट भी हैं, बिकॉज द होल डॉक्यूमेंट इज अबाउट एयर पॉल्यूशन. ओके. सो एज दे गिव अस सम टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट अराउंड द डॉक्यूमेंट, क्योंकि ये वर्ड्स जो यूज हो रहे हैं ये आपका कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट में इंपॉर्टेंस रखते हैं, हम इनको रिमूव नहीं कर सकते. सो एयर, लुक एट दिस टेक्स्ट, आपको दिख रहा है एयर पॉल्यूशन के बारे में और कितनी बार एयर और पॉल्यूशन वर्ड्स यूज हो रहे हैं. Do you think these are the important words? Yes, here they are important. But let us suppose we have 10 documents. आपके पास 10 documents and all of them talk about different issues. एक आपका वुमेन एम्पावरमेंट पे है, एक अनएम्प्लॉयमेंट पे है डॉक्यूमेंट, एक एयर पोल्यूशन पे है, एक कुछ आपका पॉलिटिक्स पे है, कुछ भी है, डिफरेंट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट है और कुछ सोशल इश्यूज पे हैं. और डू यू थिंक एयर एंड पॉल्यूशन वुड स्टिल बी वन ऑफ द मोस्ट अकरिंग वर्ड इन द होल कॉर्पस? अब ये डिफरेंट डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स हो गए. जैसे वुमेन एम्पावरमेंट पे एक डॉक्यूमेंट अलग है, एयर पॉल्यूशन पे अलग है, अनएम्प्लॉयमेंट पे अलग है, और जब हमने उन सबको मर्ज करके कॉर्पस क्रिएट किया, तो अब क्या इन टू वर्ड्स एयर और पॉल्यूशन की फ्रीक्वेंसी सेम वही होगी? इफ नॉट, then which word do you think would have the highest frequency in all of them? क्योंकि अब ये सब अलग अलग टॉपिक पे हैं, तो एयर पॉल्यूशन की फ्रीक्वेंसी उतनी नहीं होगी, या इसके इक्विवेलेंट और भी वर्ड्स होंगे, तो फिर फ्रीक्वेंसी किसकी मैक्सिमम होगी? Yes, these words which we are thinking as stop words and this is the etc are the words which occur the most in almost all the documents. यही आर्टिकल, यही प्रोनाउन, यही हेल्पिंग वर्ब से तो मैक्सिमम होंगे, बट दीज वर्ड्स डू नॉट टॉक अबाउट द कॉर्पस एट ऑल. ये तो हमारे कॉर्पस के बारे में कुछ सेंस ही नहीं रखते, कुछ भी उसकी वैल्यू है ही नहीं कॉर्पस में. नाउ दे आर इम्पोर्टेंट फॉर द ह्यूमंस, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज दीज वर्ड्स आर गिविंग स्टेटमेंट अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि हमारी ग्रामर उसके थ्रू करेक्ट है और हमें समझ में भी तभी आता है जब हम इन वर्ड्स को यूज कर रहे हैं. सो दीज आर इम्पोर्टेंट फॉर अस ह्यूमंस एज दे मेक दिस स्टेटमेंट्स अंडरस्टैंडेबल टू अस. फॉर द मशीन दे आर अ कंप्लीट वेस्ट. जब मशीन अंडरस्टैंडेबल टेक्स्ट हमें बनाना है, मशीन को लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग बनाने हम उसकी कैपेबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं, तो इसके लिए ये वर्ड्स वेस्ट है, as they do not provide us with any information regarding the corpus. क्यों? क्योंकि जब हम टेक्स्ट दे रहे हैं मशीन को, तो उसमें से वो फिल्टर करता है, एक्सट्रैक्ट करता है वर्ड्स और द टेक्स्ट विच आर हैविंग सेंस ऑफ द होल टेक्स्ट ब्लॉक, मीन्स होल कॉर्पस, जिसमें मेन आपका जो फोकस है उससे मिल जाए, वो फीचर्स मिल जाए जो टेक्स्ट जिसके ऑल अराउंड है. So these words are waste but having highest frequency through bag of words algorithm. Hence, these are termed as stop words and are mostly removed at the pre-processing stage only. ये हमें भी पता है कि वो stop words हैं और इसीलिए हम उनको pre-processing stage में remove कर देते हैं. So these three type of words are now defined: stop words, frequent words and valuable words. अब आप देखो, what are stop words? You know that words have highest occurrence in all the documents of the corpus are stop words. ठीक है, तो आप इसको कैसे डिफाइन कर रहे हो? Words have highest occurrence in all the documents of the corpus. They are said to have negligible value. Highest occurrence but negligible value are termed as stop words. Example आप दे सकते हो. Hence, हाँ, okay, these words are mostly removed at the pre-processing stage only. Now as we move ahead from the stop words, अब उसके बाद देखो और कौन से वर्ड्स की फ्रीक्वेंसी होंगी. इज, एम, आर, द के बाद और कौन से वर्ड्स आते हैं? कुछ फ्रीक्वेंट वर्ड्स जैसे गुड, हैप्पी और आपने कहा हार्मफुल, इस तरह के वर्ड्स हैं.
ठीक है, जो बहुत फ्रीक्वेंट तो नहीं है लेकिन हाँ फ्रीक्वेंट है. These words are mostly removed. अच्छा, okay, no. This now we have move ahead from the stop words. The occurrence level drops drastically. अब वो वर्ड्स जो फ्रीक्वेंट वर्ड्स हैं जिनकी बात मैंने अभी की, गुड की, हैप्पी, हार्मफुल, बेनिफिट, सो दीज आर अकरिंग फ्रीक्वेंटली बट ड्रॉप्ड ड्रेस्टिकली. जितने ज़्यादा ये इज, एम, आर, कैन, द थे उतना नहीं होता. सो इट देयर अकरेंस, देयर फ्रीक्वेंसी ड्रॉप्ड ड्रेस्टिकली, एकदम से कम हो जाती है. क्योंकि अगर वो करीब आपके 20 स्टॉप वर्ड्स, हम 200 अगर हम कह दें, तो फ्रीक्वेंट वर्ड्स के आपके कुछ 20-30 होंगे. ओके, सो द अकरेंस लेवल ड्रॉप्स ड्रेस्टिकली एंड द वर्ड्स विच हैव एडिक्वेट अकरेंस, तो उनकी अकरेंस हम क्या कहेंगे, not highest. Now their occurrence is adequate in the corpus and said to have some amount of value. उनकी वैल्यू कुछ अमाउंट में होती है, not like negligible, not highest, but have some amount of value and are termed as frequent words. So when you need to define frequent words, you will say the words which have adequate occurrence in the corpus are said to have some amount of value are termed as frequent words. Example, benefit, harmful, good, happy, etc. Now these words mostly talk about the document's subject. अब जैसे एयर पॉल्यूशन भी आपका फ्रीक्वेंट वर्ड में आएगा, एयर एंड पॉल्यूशन, वो आपके सब्जेक्ट को तो फोकस कर रहे हैं, बता रहे हैं उसके बारे में. एंड देयर अक्रेंस इज एडिक्वेट इन द कॉपस, हो भी रही है, गुड इनफ, बट वो हाईएस्ट वैल्यू नहीं है. देन एज द अक्रेंस ऑफ द वर्ड्स ड्रॉप्ड फर्दर, अगर उसके बाद हम देखते हैं वो वर्ड्स जिनकी अक्रेंस और कम है, देन द वैल्यू ऑफ सच वर्ड्स राइजेस, तो वो वर्ड्स जिनकी फ्रीक्वेंसी लीस्ट है उनकी वैल्यू हाईएस्ट. सो द अक्रेंस ऑफ वर्ड्स ड्रॉप्स फर्दर एंड द वैल्यू ऑफ सच वर्ड्स राइजेस. मीन्स अगर आप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उसमें एक बार हैं या बराक ओबामा एक बार है, तो आप सोचोगे हाईएस्ट वैल्यू उन वर्ड्स की हो गई. दीज वर्ड्स आर टर्म्ड एज रेयर और वैल्यूएबल वर्ड्स. सो दीज आर द थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स एंड देयर फ्रीक्वेंसी एंड देयर वैल्यू, उसका एक रिलेशनशिप दिखाया. हाईएस्ट अक्रेंस, नेग्लिजिबल वैल्यूज, वर्ड्स, स्टॉप वर्ड्स. Okay, now adequate occurrence, some amount of value and termed as frequent words. Words having occurrence of having least occurrence but having highest value are called valuable words. ठीक है, valuable words occur the least but they add the most value to the corpus. Hence, when we look at the we take frequent and rare words into consideration. तो ये रेयर वर्ड ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड होंगे. Now, term frequency and inverse document frequency. This is the full form of TFIDF, term frequency and inverse document frequency. What is its usage? TFIDF helps us in identifying the value for each word. Okay, you can write its definition as TFIDF is the part of bag of words algorithm, which stands for term frequency and inverse document frequency. It helps us in identifying the value for each word of the corpus. अब करना कैसे है, टर्म फ्रीक्वेंसी क्या है? टर्म फ्रीक्वेंसी इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वर्ड इन द डॉक्यूमेंट. जो हमने अभी वेक्टर टेबल क्रिएट किया था, सिंपली वही है कि जितने यूनिक वर्ड्स हैं उनकी लिस्टिंग की और जितने डॉक्यूमेंट्स हैं हर एक में वो वर्ड कितनी बार आए, फ्रीक्वेंसी लिखते चले गए. दिस इज द डॉक्यूमेंट वेक्टर टेबल एंड दिस इज नोन एज TF, टर्म फ्रीक्वेंसी. तो जब आप TF IDF का काम कर रहे हो एग्जामिनेशन में, तो सबसे पहले हम TF की ही टेबल क्रिएट करते हैं. लुक एट दिस, ये भी हम एग्जाम्पल कर रहे थे ना हेल्थ चैटबॉट वाला. सो दिस इज द स्टेप 1, आपका बन गया फर्स्ट टेबल. जब TF-IDF का क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको हर एक टेबल पे 1 मार्क मिल रहा है. सो दिस इज द फर्स्ट टेबल विच इज हैविंग द वैल्यू ऑफ 1 मार्क. तो आप ये टेबल क्रिएट करते हैं. दिस इज द टर्म फ्रीक्वेंसी. नाउ नेक्स्ट आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी. हाउ विल यू क्रिएट द डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी टेबल, कैसे बनेगी अब ये? अब डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी क्या है, इनवर्स डॉक्यूमेंट, सॉरी हाँ, अब इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी बाद में बताऊंगी. इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी है क्या? इट इज द नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन विच द वर्ड्स
occurs irrespective of how many times it has occurred in those documents. इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी क्या शो कर रही है कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स में हैं वो आपके जो वर्ड्स लिस्ट हुए थे वो वर्ड कितने डॉक्यूमेंट मीन्स एनडी अगर यहाँ लिखा है तो ये कितने डॉक्यूमेंट्स में यूज हुआ है, कितनी बार नहीं, हाउ मेनी टाइम्स नहीं, इन हाउ मेनी डॉक्यूमेंट्स इट एग्जिस्ट, कितनी बार आ रहा है उस डॉक्यूमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता। इफ इट अकर्स इन टू डॉक्यूमेंट्स देन इट्स डीएफ इज डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी इज टू। ठीक है। उसके बाद होता है इररेस्पेक्टिव ऑफ हाउ मेनी टाइम्स इट हैज अकर्ड इन द होल डॉक्यूमेंट्स, और पूरे डॉक्यूमेंट्स जितने हैं टोटल उसमें वो कितनी बार था। मीन्स अगर 4 डॉक्यूमेंट में था, 4 डॉक्यूमेंट है तो 4 में से वो 2 में है, तो वैल्यू क्या होगी उसकी आईडीएफ की 4/2। अब इसको मत कंफ्यूज हो, इसको बिल्कुल भूल जाओ मैंने जो भी बताया। आफ्टर टर्म फ्रीक्वेंसी टेबल व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप, मैं पहले ही बता देती हूँ। ओके, तो आपकी 1 मार्क हो गया, डॉक्यूमेंट देख के आपने टर्म फ्रीक्वेंसी क्रिएट की। नाउ यू विल मेक नेक्स्ट टेबल डीएफ डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी, या आप इसको देख के ही नेक्स्ट बना सकते हो। वी आपने ये पूरी हेडर रो एज इट इज डीएफ में लिखी, डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी में एज इट इज आपने इसको लिखा। देन यू हैव टू सम अप, मीन्स सम अप क्या करना है, ये नंबरों को नहीं ऐड कर देना है, इन नंबर्स को आप ऐड नहीं करोगे, आप क्या सम करोगे कि नॉन जीरो आपके वैल्यूज, जैसे आप वी के लिए यहाँ देखो 1 है या 2 है या 3 है 4 है कुछ भी है, नॉन जीरो है ना, यस, तो काउंट इट 1 दिस इज 0 सो ओनली 2। वी के लिए आपका 2 फर्स्ट डॉक्यूमेंट में भी है सेकेंड डॉक्यूमेंट में भी है, तो वी की वैल्यू क्या हो गई 2 डॉक्यूमेंट्स, मीन्स वी इज एग्जिस्टिंग इन 2 डॉक्यूमेंट्स, हाउ मेनी टाइम्स डजेंट मैटर। नाउ health is in this document, existing in this document, in 3 documents, it is existing in 3 documents, so its document frequency is 3. Now in chatbot, yes, this is non-zero value 1, this is again non-zero value 1, and this is again non-zero value so 1, so chatbot is again 3 means chatbot word occurs in 3 documents, not how many times, आप इसको ऐड करके 4 मत करना, chatbot is occurring in 3 documents, so its document frequency is 3. This way you will get the document frequency of all the terms। ये जो आपने header लिखा है ये terms हैं, यूनिक टर्म्स, यूनिक वर्ड्स, यूनिक टोकन, इनकी फ्रीक्वेंसी हमने यहाँ पे लिख लिया। आपको समझ में आ गया है? अगर फर्स्ट 3 कंफ्यूजिंग थे तो आपको सिंपली समझ में आ रहा है। V2 डॉक्यूमेंट्स में, हेल्थ 3 डॉक्यूमेंट्स में, चैटबॉट 3 डॉक्यूमेंट्स में, ट्रीट 1 में है, स्ट्रेस NLP क्रिएट में, रिप्लेस ह्यूमन काउंसिल, और दीज वर्ड्स आर अवेलेबल ओनली इन 1 डॉक्यूमेंट्स। नाउ व्हाट इज IDF, द नेक्स्ट स्टेप, ये आपका 1 मार्क यहाँ हो गया, देन 1 मार्क विल बी फॉर IDF। ठीक है, अब आपका ये DF आप इस पे मार्क नहीं है, DF IDF दोनों हैं, तो आप इसको बल्कि DF को छोड़ के सीधे IDF भी क्रिएट कर सकते हो, पर इजी हो जाता है अगर आप DF बनाते हो। इन दोनों को मिला के आपका 1 मार्क। नाउ DF मीन्स इनवर्स, अब आपको इसको इनवर्स कर देना है। इनवर्स कैसे करते हैं, हाउ मेनी डॉक्यूमेंट्स आर इन द क्वेश्चन, 3 डॉक्यूमेंट्स, स्टार्टिंग किससे की थी 3 डॉक्यूमेंट से, सिंपली यू हैव टू पुट 3 एज न्यूमरेटर एंड मेक इट अ फ्रैक्शन। V3 मतलब ये 3 डॉक्यूमेंट में से 2 में है, तो 3/2 फ्रैक्शन में उल्टा होता है। ये अगर हम कहते हैं ना कि मुझे पिज्ज़ा के 4 पीसेस में से 2 पीसेस चाहिए, तो हम क्या कहते हैं, मुझे कितना चाहिए 2/4, लेकिन हम इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी में इसका उल्टा लिखेंगे बस। फ्रॉम 3 इन द 3 all the 3 documents V occur in 2. In all the 3 documents, out of 3 documents, it occurs in 2. Out of 3 documents, health occurs in 3. Out of 3 documents, chatbot occur in 3. Out of 3 documents, treat occur in 1. Out of 3 documents, stress occur in 1. तो इस तरह से हम ये इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी क्रिएट करते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल फ्रैक्शन जैसे बनाते हैं उसका उल्टा हो गया। तो ऊपर जितने डॉक्यूमेंट आप क्वेश्चन में ले रहे हो सेम वो आप लगाते चले जाएंगे, सेम DF आपका IDF बन जाएगा ना। 2 के पीछे आपने न्यूमरेटर लगा दिया 3/, तो सिंपली
create your IDF. It will give you 1 mark for TF-IDF question. The next step is TF-IDF. अब हमारा लास्ट आ गया TF-IDF कैलकुलेशन। हम इनको क्यों कर रहे हैं? ये सारे अपने टर्म्स की बाइनरी नंबर में हमें कन्वर्ट करना है फाइनली। आफ्टर गेटिंग द बाइनरी वैल्यू, आफ्टर गेटिंग द न्यूमेरिक वैल्यू, बाइनरी तो इसके बाद का स्टेप है जो बुक में नहीं अभी आपको दिया सिलेबस में। आपका जब ये एक न्यूमेरिक वैल्यू इसकी मिल जाएगी, वो बताएगी कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, तो हम ये उसके लिए इतनी एक्सरसाइज करते हैं। So TF-IDF, it is having the formula TF-IDF for any term, means V का TF-IDF अलग, health का भी TF-IDF अलग, और हर एक वर्ड का TF-IDF वैल्यू अलग अलग निकलेगी। तो what is the formula for TF-IDF for any word? It is equal to term frequency for that word। जैसे V की term frequency क्या थी? V की term frequency क्या थी? ये है, फर्स्ट डॉक्यूमेंट के लिए 1 थी, सेकंड के लिए 1 थी, थर्ड के लिए 0 थी। तो मीन्स आप जब TF-IDF निकालोगे तो हर एक डॉक्यूमेंट के लिए अलग अलग निकालेंगे। तो टर्म फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाई लॉग वैल्यू ऑफ IDF ऑफ दैट टर्म और IDF ऑफ दैट वर्ड। IDF क्या, जो हमने इस टेबल में लिखा 3/2, तो इसकी लॉग वैल्यू निकाली जाएगी और उसको मल्टीप्लाई करोगे TF से। Now if you are thinking what is log, how to calculate log, तो अभी जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो घर पे, तो आप कंप्यूटर पे, कैलकुलेटर पे किसी की भी लॉग वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे आपने लिखा log in bracket 3/2, तो वैल्यू दे देगा। इन एग्जामिनेशन मे बी we think CBSE will provide you these few values which may occur, or which you may need in the solution of the question, or maybe some support material will be there in the examination room, तो हम सोच सकते हैं। But I will suggest you should learn few values। आप ये सोच के अगर चलते हो कि अगर मेरे मैक्सिमम 4 डॉक्यूमेंट पे क्वेश्चन आएंगे, तो आपकी मैक्सिमम वैल्यू होगी 4/4 और लीस्ट वैल्यू क्या होगी 4/1। तो आप 4/1, 4/2, 4/3, 4/4 की लॉग वैल्यू लर्न कर लो और 4/0 की भी लर्न करो। तो अगर आप इस कुछ इसी तरह 3/1, 3/2, 3 कुछ थोड़े आप देखोगे ना, बहुत कॉमन से निकल आएंगे कि इतने आपको लर्न करने। ठीक है, अब ये मत सोचना कि ये क्या एक मुसीबत बता दी मैम ने, क्योंकि हम सोच रहे हैं CBSE आपको कुछ ना कुछ सपोर्ट मटेरियल देगा एग्जाम में, क्योंकि उन्होंने बुक में लिखा है। Now look at this. After getting the IDF value, we will calculate TF-IDF of each of the term in each of the document with this formula. अब आपका कैसे करना है, बहुत इजी है। सिंपली वेक्टर टेबल एज इट इज आप लिख दो। पहले जो आपने ये डॉक्यूमेंट वेक्टर टेबल बनाई थी ना, इसी टेबल को आप यूज करो। आपने टेबल फटाफट बना दी विद बिगर स्पेस, आपने ज़्यादा स्पेस रखा, मोर स्पेस, और इसके संग मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाया, लॉग लगाया, वैल्यू लॉग की कौन सी लगेगी उसका IDF 3/2, लॉग 3/2, लॉग 3/2, लॉग 3/2। IDF कॉमन होता है तीनों ही कॉलम में, आप तीनों ही रो में आप उसी लॉग वैल्यू से मल्टीप्लिकेशन कर दोगे जो भी फ्रीक्वेंसी आपने डॉक्यूमेंट वेक्टर टेबल में रखी हुई है। फर्स्ट note down the document vector table values in this TF-IDF table। आपने ये लिख दिए जो ब्लैक से लिखे हुए, ये मैंने डॉक्यूमेंट वेक्टर टेबल से एज इट इज लिख दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, आपकी IDF वैल्यू ये आ चुकी हैं, आपने सिंपली लॉग मल्टीप्लाई विद लॉग इन ब्रैकेट एंड IDF वैल्यू को आप यहाँ पुट करते जाओगे। 3/2 जो V की है वो आपके तीनों रो में वही log 3/2 मल्टीप्लाई बाई log 3/2 मल्टीप्लाई log 3/2। सेम वे आप इसका करोगे, इसका 3/3 था तो मल्टीप्लाई बाई लॉग 3/3 मल्टीप्लाई बाई लॉग 3/3 मल्टीप्लाई, इस तरह से आप सबकी IDF वैल्यू की लॉग से मल्टीप्लाई कर देंगे फ्रीक्वेंसी को। तो डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी ये सॉरी आपकी डॉक्यूमेंट वेक्टर टेबल जो बैग ऑफ वर्ड्स के एंड में थी वही आपकी टर्म फ्रीक्वेंसी थी, और उसी टेबल को यूज करके आपने TF-IDF टेबल क्रिएट कर ली। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू, दिस इज द लास्ट स्टेप। इसमें आपका अगर log 1 है लाइक दिस, log 3/3, log 1 है तो उसकी log वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी इस तरह की वैल्यू हैं वो आपकी 0 हो जाएंगी। 0 × 1 0 होता है, तो वो सारे 0 हो गए। इसके बाद जितने वैल्यू है 3/2,
उसको हमने नेट से देखा 0.176 है, या कैलकुलेटर का फ़ोन किसी से भी चेक किया, तो आप लर्न कर लो। ये कुछ ही हैं जो आपके एग्जाम में आपको ज़रूरत पड़ेंगी। 3 log 3/2 इज 0.176। log 3/1 कहाँ पे है ये, log 3/1 इज इक्वल टू 0.47। तो जहाँ जहाँ ये 1 × log 3/1 है वहाँ 0.47, लेकिन जहाँ ज़ीरो है, अच्छा सिंपली हमने सबसे पहले क्या किया, जहाँ भी ज़ीरो है फ्रीक्वेंसी उन सबको फटाफट ज़ीरो लिख दिया। ठीक है, फिर जहाँ पे 3/3 मीन्स हर डॉक्यूमेंट में अवेलेबल है वो वर्ड 3/3 है। अगर आपका 4 डॉक्यूमेंट का क्वेश्चन है तो 4/4 है, 2 का है तो 2/2 है, वहाँ पर भी लॉग 1 की वैल्यू ज़ीरो हुई तो 1 × 0 हो या 2 × 0 हो, रिजल्ट तो ज़ीरो ही आना है, तो आप वो भी ज़ीरो कर दोगे। रेस्ट ऑफ दी लॉग वैल्यूज यू हैव टू राइट। तो 3/2 की वैल्यू है 0.176 एंड 1 × 0.176 इज इक्वल टू 0.176। तो ये हम लिखते चले यार, 2 × 0.176 इज इक्वल टू 0.352। So this way you have to complete the table. After this you have to tell words having highest value. तो अब आप इसमें खुद चेक कर लो कि 0.477 जिसकी वैल्यू है यही हाईएस्ट वैल्यू है, तो ये किसके पास है वैल्यू, स्ट्रीट, स्ट्रेस, क्रिएट, एनएलपी, मेक, रिप्लेस, ह्यूमन, काउंसलर। तो दीज आर दी हाईएस्ट वैल्यूड वर्ड्स एंड द लीस्ट आपका हो गया वी। ठीक है, और वी के बाद हम ज़्यादा से ज़्यादा देखते, सॉरी वी वी आपका लीस्ट वैल्यू में नहीं है, मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, वर्ड हैविंग लीस्ट वैल्यू हेल्थ एंड चैटबॉट। वेट मैं कुछ गलत कर रही हूँ, हाँ हाँ सॉरी सॉरी, हेल्थ एंड चैटबॉट जीरो हो गया ना, सो लीस्ट वैल्यू किसकी हुई, हेल्थ एंड चैटबॉट। सो दिस वे यू हैव टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज TFIDF दैट मच। तो और भी कुछ वर्कशीट्स हैं, मैं उनके आपको यहाँ पे शेयर कर दूंगी, आप ट्राई कर सकते हो लाइक दिस। अमन अनिल आर स्ट्रेस डॉक्यूमेंट 1, अमन वेंट टू ए थेरेपिस्ट डॉक्यूमेंट 2, अनिल डाउनलोडेड ए चैटबॉट हेल्थ चैटबॉट डॉक्यूमेंट 3। अब हमने क्या किया, फटाफट हमने इसका क्या करोगे, कैसे करोगे फटाफट, सबसे पहले आपने इसका कॉर्पस क्रिएट किया, ये हो गया कॉर्पस। फिर हमने इसके ये टोकनाइजेशन किया, अलग अलग वर्ड्स आ गए। देन रिमूव स्टॉप वर्ड्स, सारे सिंबल हटा दो, और देन ये लोअर केस में आ गए सारे। लोअर केस में करने के बाद हमने स्टेमिंग, अब एग्जामिनेशन में ये नहीं स्टेप दिखाते हैं, सीधे वेक्टर टेबल पे आते हैं, सारे स्टेप नहीं दिखाएंगे। लिमिटाइजेशन में हमने अफिक्सेस हटा दिए। जब हम TFIDF का क्वेश्चन करेंगे तो सीधे डॉक्यूमेंट से आपको रफ में तो एक आइडिया लग चाहिए ना, तो आपको पता होना चाहिए, तो आप वहाँ पे इस डॉक्यूमेंट के बाद सीधे आ जाओगे इस टेबल 1 पे एग्जाम में। तो अब आपका ये जब बन गया, डॉक्यूमेंट वेक्टर टेबल आपका क्रिएट हुआ। डॉक्यूमेंट वेक्टर टेबल बनाने के बाद आपने उसकी टर्म फ्रीक्वेंसी क्रिएट की, देन DF, ठीक है, देन इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी ये आपकी रेडी हो गई। देन लॉग वैल्यू आपने निकालने का आपको पता है कैसे करने हैं। देखो आप यहाँ 3/2 कुछ ट्रिक्स ही होते हैं जो आपको याद रखने हैं, तो मुझे तो यही लगता है आपको याद कर लेनी चाहिए कुछ वैल्यूज। तो आपने ये कैलकुलेट किया, finally you have got the least and highest value with the final result. So this way you can done this activity. I hope it will be helpful for you. If you are not able to understand, click on the link given for these activities and also result of these activities given, so you can check, try and understand. If you are facing any problem, please write me in the comment. Thank you. Bye bye.